زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں وہ جو مقام، وہ پھر نہیں آتے، کبھی نہیں آتے، اور جو مقام گزرتے جاتے ہیں وہی ہمارا تجربہ یا ہمارا پاسٹ بنتا جاتا ہے۔ ساحر لدھیانوی نے کہا ہے کہ دنیا کے تجربات و حوادث نے شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، کہ دنیا نے جو کچھ مجھے میرے تجربے یا میرے ساتھ جو حادثے ہوئے ہیں ان کی شکل میں مجھے دیا ہے، وہی میں اپنا تجربہ سمجھ کر دنیا کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ یہی ہمارا تجربہ ہے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں، یہ ہر انسان پہ الگ الگ منحصر ہے۔ میں بات کر رہا تھا پچھلی بار اپنے ہمسایوں کی۔ گاؤں میں جو ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ انسان مجھے یاد ہیں، وہ پیر صاحب تھے، میرے ہم عمر تھے۔ ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کے والد پیر صاحب تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ میرے ہم عمر جو بچے تھے یہ گدی نشین ہوئے۔ میرے کلاس فیلو تھے، ہم پڑھتے تھے، اکٹھے پڑھتے تھے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ جو ہی وہ گدی نشین ہوئے ان میں ایک سنجیدگی آ گئی۔ میں نہیں جانتا آج وہ اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ہیں یا ان کے جانشین ہیں تو میں اپنی طرف سے ان کو اپنا آداب اور سلام بھیجتا ہوں۔ دوسرے میرے جو دوست جو مجھے بہت یاد ہیں، وہ ہماری گلی سے تھوڑا سا دور اپوزٹ سائڈ میں رہتے تھے۔ ان کا نام تھا کلدیپ رائے اور درشن سنگھ۔ بعد میں کلدیپ جو بڑا بھائی تھا وہ بھی کلدیپ سنگھ بن گیا۔ ان کے پتا جی جو تھے ان کا نام تھا بابو جیمل رام، اور وہ لاہور میں کام کرتے تھے، لیکن ان کا پریوار جو ہے وہ پورا گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ ہمارے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے جو گلی کے اپوزٹ دوسرا دروازہ تھا وہ تھا مسٹر عبد الحسین کا۔ عبد الحسین ہمارے خاندانی نائی تھے، اور وہ میرے دادا جی اور میرے پتا جی کی حجامت روز بنایا کرتے تھے۔ گاہے بگاہے جب ضرورت پڑتی تھی تو ہم بچوں کے وہ بال بھی کاٹ دیا کرتے تھے، اور صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ گاؤں میں بہت سارے ہم جیسے تھے جن کے وہ بال کاٹتے تھے۔ ان کی کوئی دکان نہیں تھی، جہاں بھی انہوں نے بال کاٹنے ہوتے تھے گھر کے سامنے گلی میں بٹھا دیتے تھے اور وہیں ہمارے بال کاٹ دیتے تھے۔ نائی کمیونٹی جو تھی ان کا بھی گاؤں میں ایک بہت مقام ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے میرے ننہال میں، میرا ننہال سادھو گرایا ڈسٹرکٹ گوجرانوالا میں تھا، وہاں کے جو نائی تھے وہ سری اندر سنگھ تھے، 6.25 فٹ لمبے چوڑے سردار، لیکن ہم ان کو ہمیشہ ماما کہتے تھے، اور ان کی جو وائف تھی ان کو ہم ہمیشہ ماسی کہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا جو مجھے مقام یاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر بارات میں شامل ہوتے تھے، اور جو ہمارا بارات کے اندر سب سے قیمتی سامان ہوتا تھا، جیسے دلہن یا دولہے کے کپڑے ہوتے تھے اور ان کے زیورات ہوتے تھے، وہ جس بکسے میں ہوتے تھے وہ اپنے سر پہ اٹھا کے چلتے تھے۔ بہت عزت کا مقام تھا ان کا۔ اسی طرح جو دوسری ایک کمیونٹی مجھے بہت یاد آتی ہے وہ تھی مراسی کمیونٹی۔ یہ ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل کمیونٹی تھی۔ وہ بینڈ بھی بجاتے تھے۔ وہ آج جو آپ شادی.com دیکھتے ہو ان کا یہ بھی
पेशा था। 40-50 गांव जो दाएं बाएं के होते थे, उन सब में उनका जाना लगा रहता था और उनका ये काम रहता था कि जहाँ भी किसी का बेटा या बेटी शादी की उम्र के लायक होते थे, वो आके दूसरों को बताते रहते थे कि भाई देखो पंडित जी या चौधरी साहब, फलां गांव में फलां चौधरी का बेटा जो है वो अभी शादी के काबिल हो गया है और आपकी बेटी भी है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उनको इस बात का लिहाज हमेशा रहता था मरासी कौम को कि जिसको वो बता रहे हैं वो दोनों तकरीबन एक दूसरे के स्टेटस के बराबर हों। तो ये भी उनका काम था। जो वो तीसरा काम था उनका, वो था बैंड का। वो घर के 5-6 आदमी होते थे, 2-3 तूतनियाँ उनके पास होती थी, मैं नहीं जानता उनका क्या क्लैरिनेट थी या क्या थी, वो बजाते थे। और 2 बैंड वो बड़े ढोल होते थे, उन पर डगा बजाते थे। उन दिनों में कोई जो बैंड होते हैं शादी के लिए या इन कामों के लिए नहीं होते थे, वो ये भी काम करते थे और तकरीबन हर शादी में शामिल होते थे। लेकिन वो क्या बजाते थे वो किसी को मालूम नहीं होता था, क्योंकि उन दिनों में ट्यून कोई ख़ास होती नहीं थी। कई बार जो गांव के बड़े बुज़ुर्ग होते थे, जब उनकी वफ़ात हो जाती थी, वो स्वर्गवास हो जाते थे, तो उनके लिए भी लोग बड़े बैंड बाजे से उनको साथ ले जाते थे। कई बार मेरे पिताजी कहते थे कि जब ये किसी ऐसे बुज़ुर्ग के साथ बैंड बजा रहे होते हैं तो पता नहीं ये बजा रहे हैं चल चल रे नौजवान, और जब किसी की शादी होती थी तो तब ये बजा रहे होते थे तकदीर में यही था साजन मेरे न रो। तो पता नहीं चलता था कि वो क्या बजा रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ ज़रूर आती रहती थी। जो तीसरी इस कौम की बहुत बड़ी खूबी थी वो थी कि ये बहुत मज़ाहिया किस्म के इन सब लोग होते थे। बहुत मजाक में होता था और तंज भी करते थे, यानी ताना मारने के भी नहीं चूकते थे। किस पर तंज करते हैं, किसके ऊपर मजाक करते हैं, जिसके ऊपर ये मजाक करते थे उसके लिए बहुत दफ़ा काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता था। लेकिन हम लोगों की या जो भी लोग इनके संपर्क में आते थे या इनके साथ चलते थे, उनकी आदत हो जाती थी कि ये लोग, इन लोगों की आदत है, इसको हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं कुछ 2-4 इनकी मज़ाहिया तबीयत की आदतें और इनके दूसरों के ऊपर तंज करने की आदतों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि चौधरी साहब और उनके साथ साथ मरासी एक छोटी सी गांव की जो पटरी होती है, जिसको हम वट या छोटा ट्रैक कहते हैं, उसके ऊपर चल रहे थे। चौधरी साहब बहुत भारी भरकम आदमी थे। उनको अपने जिस्म की हवा निकालनी थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उनको मालूम था कि मरासी उनके पीछे पीछे चल रहा है और वो उनके ऊपर मजाक ज़रूर करेगा। वो रह नहीं पाए तो आखिर उन्हें वो हवा निकालनी पड़ी और उससे काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ आई। तो मरासी चुपचाप पीछे चल रहा था। अब चौधरी साहब ने सोचा कि इसका ध्यान बटाने के लिए इससे कोई बातचीत करनी चाहिए ताकि ये मेरे ऊपर कोई ताना न मार दे। तो उन्होंने कहा, दादे और या, हम उनको मरासी नहीं कहते थे, इज्जत से पुकारा जाता था, उनको दादे औरा कहा जाता था। दादे और या, कितने भरा हो, यानी आप कितने भाई हैं? तो मरासी थोड़ा संजीदा हो गया, चुप रहा। फिर चौधरी ने पूछा, दादे और या, कितने भरा हो?
कितने भाई हो? तो मरासी ने कहा कि जजमान हैं तो हम 4, लेकिन अभी 3 ही समझो। तो चौधरी ने कहा कि भाई चौथे का क्या बीमार है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है जिससे वो उसको शफा नहीं मिलेगी? तो मरासी ने बड़ी संजीदगी से कहा कि नहीं चौधरी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, 3 भाई तो ठीक हैं, चौथा भाई तोप के मुंह के सामने है, अगर बच गया तो भाइयों से जाके मिल जाएगा। तो ये छोड़ते नहीं थे किसी को भी। एक बार किसी चौधरायन के पास बैठे हुए थे। अभी चौधरायन गांव में चौकी होती है, एक छोटी जिसको पीढ़ी होती है, छोटी लो तकरीबन 8-10 इंच की ऊंचाई पर, तो उसके ऊपर बैठी हुई थी। उनको भी हवा पास करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने ये सोचकर कि मरासी सामने बैठा हुआ है, अभी क्या किया जाए, वो बैठी हुई थी। तो जो ही उन्होंने अपनी हवा पास की या निकाली, उसके साथ साथ पीढ़ी को थोड़ा सरका दिया, और पीढ़ी जो ईंटों का फर्श था उसके ऊपर सरकती हुई उसने भी थोड़ी, पीढ़ी ने भी आवाज़ की। चौधरायन का ख्याल था कि जो उनकी हवा पास करने की आवाज़ है वो पीढ़ी की आवाज़ के अंदर छुप जाएगी और मरासी को समझ नहीं आएगी। मरासी बड़ा सीरियसली बैठा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, मैं चौधरायन, वो सुर होर सी ते ये सुर होर है, कि दोनों सुरों में थोड़ा फ़र्क है, वो सुर अलग थी और इसकी अलग है। तो वो किसी को भी इस तरह छोड़ते नहीं थे। और कई बार जो जजमान होते थे वो ये महसूस करते थे कि इन लोगों को भी हम नज़दीक नहीं आने देंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया वो बहुत एक ज़रूरी कम्युनिटी थे और उनके बगैर गांव का काम नहीं चलता था। मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के जो गांव हैं, पंजाब पाकिस्तान के, उनमें आज ये कम्युनिटी है या नहीं। कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में एक मरासी था। किसी ने उसको बोला कि उसके साथ शर्त लगाई कि भाई महाराजा साहब को काना कह सकते हो। आपको जैसे मालूम है कि महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने पंजाब में सिख राज की स्थापना की और जो आपस में बहुत बड़े महाराजा माने जाते हैं, उनकी एक आंख नहीं थी। तो इसीलिए शर्त लगाने वाले ने कहा कि भाई महाराजा साहब को दरबार में काना कह सकते हो। रासी ने सोचा, कहने लगा हाँ कह देंगे। शर्त लग गई। दरबार में महाराजा साहब बैठे हुए थे। मरासी आया, सलाम किया और कहने लगा कि उन्होंने कहा कि भाई बोल, कुछ क्या कहना चाहता है। कहने लगा साहब आज एक महाराजा साहब एक कुछ मैंने कहा है, आपको सुनाना चाहता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा सुनाओ भाई, क्या सुनाना चाहते हो। कहने लगा कि तेरी इक्को अख सुलखनी जिनने लखा तारे, कि तुम्हारी एक ही आंख है, इस तरह की है जिसने लाखों को तार दिया है। तेरी इक्को अख सुलखनी जिन्हें लखा तारे, तेनू चुक चुक करन सलामा दू अखां वाले। कि तुम या महाराजा साहब आप उस स्थान पर हो जहां आज सारे 2 आंखों वाले आपको झुक झुक कर सलाम करते हैं। महाराजा साहब ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, दाढ़ी में एक बाल हाथ में आया। कहने लगे दरबारी को कि भाई इसको एक अशरफी इनाम दे दो। मरासी ने देखा, एक अशरफी हाथ में ली। कहने लगा महाराजा साहब अगर जान बख्शी हो तो कुछ कहूँ।
आपने दाढ़ी पे हाथ फेरा, एक बाल आपकी दाढ़ी में आया, आपने मुझे एक अशरफी दी। महाराजा साहब ने कहा, हाँ तेरी जान बख्शी है, बोल की कहना चाहना है, कहो। मरासी ने कहा, जनाब दाढ़ी तुहाडी हुंदी ते मैं हत्थ पकड़िया हुंदा, हत्थ 'च पकड़ी हुंदी ते इत्थे जिन्नियां अशरफियां ने तुसी गिन नहीं सकते। महाराजा साहब बहुत हंसे। उन्होंने कहा, यार इस कंजर को ना 10 अशरफियाँ और दो। तो महाराजा रंजीत सिंह के सामने इतनी बात कह देना, लेकिन खूबी क्या थी? खूबी महाराजा रंजीत सिंह की, और इसी में उनकी महानता थी। आप समझते हैं कि ये लोग कैसे महाराजा बन गए? क्या इनमें महानता थी? यही उनकी महानता थी कि उनके ऊपर तंज हुआ, लेकिन वो कैसे उसको हंस के टाल गए, और कैसे कहने वाले के ऊपर कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की। यही उनकी खूबी थी। कहते हैं एक दिन महाराजा साहब शाम के वक्त, गर्मी होती थी तो गर्मी के दिनों में शाम के वक्त हाथी के ऊपर सवारी करने निकलते थे। हाथी के ऊपर सवारी करने निकले हुए थे तो एक शराबी जिसने बहुत पी रखी थी, उसने कहा, ओ काणिया, ए खोता बेचना ही कि ओ काने, ये जो गधा है जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो, ये बेचोगे? महाराजा साहब को समझ आ गया कि इसने पी रखी है और धुत है। तो महाराजा साहब ने दरबारियों को बोला कि ठीक है, इसको पकड़ लो, कल सवेरे दरबार में ले आना। अगले दिन सुबह जब उसकी शराब उतर चुकी थी तो महाराजा साहब के दरबार में उसको पेश किया गया। वो कुछ डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी। फिर भी हिम्मत करके वहाँ खड़ा हो गया, सिर झुकाया हुआ था। रंजीत सिंह बहादुर ने पूछा कि क्यों भाई, वो खोता खरीदना ही? दैट यू वॉन्ट टू बाई द डंकी? उसने ऊपर देखा, हाथ जोड़े, कहने लगा, महाराजा साहब वो सौदागर जो हैं वो भी चले गए हैं। रंजीत सिंह बहादुर खूब हंसे और उसको बिना किसी सजा के माफ़ कर दिया। आज हम में कितने लोग हैं जिनकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि उनके ऊपर कोई तंज करे तो वो उसको छोड़ दें। एक बहुत बड़ी, कई बार एक अंग्रेज़ी में कहा जाता है, बी सीरियस इन लाइफ बट डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। अपनी ईगो को इतना मत बढ़ा लो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। जो पुराने बड़े लोग जो इतने महान हुए, रंजीत सिंह जो इतने बड़े महाराजा कहलाए और जिनकी बराबरी पंजाब में वाकई किसी ने नहीं की, उनके बारे में आप अगर ये सुन के अगर वो एक चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? हमारी बहुत सी रिश्ते ऐसे छूट जाते हैं जो हमारी ईगो की वजह से छूट जाते हैं। हमारे बहुत सी दोस्ती ऐसी छूट जाती है। हमारे बहुत से ऐसे पुराने लोग छूट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज के लिए इतना ही। कल फिर